Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I'm Nitika. Let's check the pulse of a stock market. I'm here with the stock as I promised with the stock which has posted very good Q3 results. I will discuss its Q3 results and will analyze its fundamental also for you all, and then I will discuss its buying level for the long term investment. As you all know, I only select the fundamentally strong stocks. So, to know the name of the stock and its buying level, stay connected till the end and smash the like button now. And yes, subscribe the channel also to know the buying level for the long term for these kind of strong stocks. So, let's begin with the name of the stock as I'm going to discuss. Actually, this is from the banking sector, and actually I had two options, but I have selected the both option was very good, but I have selected the one which was actually at a very good buying level, and it is going to come even on मतलब फ्यूचर में कुछ दिनों में ये अच्छे बाइंग प्राइस पे भी आने वाला भी मीन्स द वेरी वेरी राइट टाइम टू ग्रैब दिस स्टॉक. द अदर स्टॉक वाज आल्सो वेरी गुड बट वो थोड़ा सा रन अप कर चुका था, but this stock is exactly on its buying level, or we can say it is going to come on the buying level even means abhi se agar you will study this stock, so you can grab this stock at right time at right place. So what is the which actually so what is the name of the stock? That as I already discussed, it is from banking sector, and this is Kotak Bank. It means Kotak Mahindra Bank. तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था? Yes, I had the other option was ICICI Bank, which is actually which has also posted very very good results. रिजल्ट्स दोनों का ही अच्छा है, दोनों का ही इक्वल है. इवन आई विल से कि यस आईसीआईसी बैंक का लिटिल बिट बेटर है, बट this stock was at very good buying level, which I am going to discuss in the end of the video. Please stay connected to the video so that you can come to know the exact buying zone for this stock for long term. So let's discuss the Kotak Mahindra Bank. This stock actually I guess I'm going to discuss first time. ICICI Bank and HDFC banks I guess discussed many time, और एच डी एफ सी बैंक ने तो बिल्कुल ही मीन्स बहुत ज़्यादा निगेटिविटी दिखा चुका है. एच डी एफ सी बैंक से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है. यस, इन्वेस्टर्स ऑलवेज एक्सपेक्ट वे टू मच फ्रॉम द एच डी एफ सी बैंक, और एच डी एफ सी बैंक इज़ नॉट शोइंग एनी गुड पॉजिटिविटी. उसकी मतलब टेक्निकल लेवल्स में भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है, एंड रिजल्ट्स वाज एक्चुअली क्वाइट ओके, बट यस एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पा रहा है. बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एच डी एफ सी बैंक खराब हो चुका है, या दिस इज इवन स्टिल इट इज नंबर वन बैंक ऑफ इंडिया, नंबर वन बाई मार्केट कैप, और नंबर नॉट ओनली बैंक इवन इन द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया के बेस्ट कंपनी में ये रिलायंस के टॉप फाइव में आता है. दिस बैंक इज एक्चुअली कमिंग इन टॉप फाइव, बट स्टिल वही है, दिस इज नॉट meeting the expectation. This disclaimer, this is not any recommendation. I can keep the facts information in front of you. You can study the data, you can study the stock, and then you can go ahead with your decision or whatever. Only I have to give all these things, all information about the stock for education purpose. Now let's start with the Kotak Mahindra Bank. Let's talk about the Kotak Mahindra. The Kotak Mahindra. So let me first discuss the Q2 results. So you can see the Q2 results. Kotak Mahindra has posted actually good Q2 result. I'm comparing the Y on Y. तो प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट इज 3005 करोड़ में है. तो 3005 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट टाइम के 2791 राउंड मीन्स लास्ट ईयर के फिगर से बढ़ा हुआ है. कितना? 7.6%. तो 7.6% इंक्रीज हुआ है इन व्हाट? प्रॉफिट.
प्रॉफिट ऑफ एंड एनआईआई जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम है, जिससे बैंक को इनकम होती है इंटरेस्ट से, दैट इज 6554, 6554 from the last year, which was 5652.9 अराउंड। तो ये भी बढ़ा है, एनआईआई भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है, क्यू नो वाई ऑन वाई। और दिस एनआईआई हैज इंक्रीज बाय 15 पॉइंट अराउंड 16 पॉइंट परसेंट। तो 16% अराउंड 16% से एनआईआई इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज द एक बाय ऑन वाई फिगर थी जो कि प्रॉफिट और एनआईआई की। प्रोविजन, यस प्रोविजन जो है वाई ऑन वाई 579 करोड़ हो गया है वर्सेस लास्ट ईयर जो कि 149 करोड़ था वाई ऑन वाई। एंड क्यू ऑन क्यू 366.6% से 579 करोड़ हो गया। मीन्स दिस टाइम प्रोविजन इज 579 करोड़, जो कि पहले से वाई ऑन वाई भी बढ़ा हुआ है और क्यू ऑन क्यू भी बढ़ा हुआ है 366.6 करोड़ से। नाउ सेकेंड थिंग कम्स व्हाट, एनपीए की बात करूंगी। लेट्स टॉक अबाउट एनपीए। यू कैन सी इन योर स्क्रीन दैट ग्रॉस एनपीए हैज बिकम 6301.7 crore, which was in q2, q2 means q on q I am discussing। q2 में 6087 करोड़ के अराउंड था, जो कि 3.5% से इंक्रीज हुआ है ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए इज ऑल्सो, actually it has declined by 3.9%, 1225.3 हो गया है फ्रॉम 1274.8 से। तो दिस इज एग्जैक्ट फिगर है कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक एक यू कैन हैव योर एस्टिमेट कि कितना कितना ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। द फिगर इज ओके, फिगर उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मीन्स नेट एनपीए भी बढ़ा हुआ है, नेट एनपीए घटा है, यस नेट एनपीए कम हुआ है, ग्रॉस एनपीए बढ़ा है। और परसेंटेज में देखें तो ग्रॉस एनपीए 1.73% हो गया है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 1.72%, मतलब एकदम ही नॉमिनल, मतलब नॉमिनल कहूँ मार्जिनल कहूँ 1.72% से 1.73% हो गया, जो कि बढ़ा है तो मतलब नेगेटिव साइन है। बट दिस इज नॉट एज नेगेटिव, जो कि 0.01% का जो इंक्रीज है दैट डज नॉट मैटर एक्चुअली। तो कम होना, एज यू ऑल नो कि ग्रॉस एनपीए कम होना इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। तो 1.73 बहुत ज़रा सा बढ़ा है, तो कंपनी ने एक तरह से मेंटेन किया है ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए कंपनी में क्या बोलूँ, बैंक, यस नेट एनपीए बैंक का 0.34% हो गया फ्रॉम द 0.37% क्वार्टरली क्यू ऑन क्यू, विच हैज एक्चुअली केम डाउन। और कमिंग डाउन, द एनपीए कमिंग डाउन मीन्स गुड साइन फॉर द बैंक, और 3 bps से इसका एनपीए नेट एनपीए कम हुआ है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। तो ओवरऑल अगर देखें तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों मेंटेन है, और बल्कि नेट एनपीए तो अच्छा है, इट इज गुड। तो दिस वाज द ओवरऑल रीजन जो कि मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट, एनआईआई, प्रोविजन आई हैव डिस्कस्ड, देन आई हैव डिस्कस्ड द ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। सो दिस वाज ओवरऑल कंप्लीट picture of the Q3 result of the bank। और बैंक हैज पोस्टेड, हाँ एस्टिमेट में अगर जाए तो यस एस्टिमेट में थोड़ा बहुत कंपनी बैंक ने मीट नहीं किया है सीएनबीसी का एस्टीमेट। सो बट बहुत उसमें कहते हैं कि बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, जो कि 3500 का पोस्ट किया, और 3161 का शायद सीएनबीसी का एस्टीमेट था, जो कि उसने नहीं बीट किया। बट दैट इज ओके, ओके बिकॉज द फ्रॉम द बिग बैंक, बिग कंपनीज, द एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज हाई। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ एचडीएफसी बैंक, व्हाट इज हैपनिंग देयर, यही only this thing। This was overall a short picture of uh, bank Q3 result।
So I will discuss the fundamental, and I will show the comparison also with the other banks, so that you can find out the better outcome from this information, from this data. Now I have come to the fundamental. You can see I am actually comparing the other bank also with this Kotak Mahindra Bank. In front of you, the all facts is kept in front of you. See, it is trading at 1784, means 1784 k around the stock, the bank stock is trading. And you see the P इसका जो है price and earning ratio, that is actually more than the HDFC and ICICI बैंक. ओके, मतलब ये स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है, कॉस्टली दिख रहा है, बट नॉट दैट मच, मीन्स सिर्फ दो तीन नंबर्स का ही डिफरेंस है, मीन्स. और इफ वी से तो ये अराउंड एक एक मतलब कि उसी रेंज में है, द सेम रेंज जो HDFC बैंक और ICICI बैंक का जो है. जबकि अदर बैंक जो है, ये इंडसइंड का, इनका जो पी बहुत कम है. बट अकॉर्डिंगली इसका देखा जाए तो ये एक इसी इन्हीं बैंकों के रेंज में इसका भी पी है, तो पी इज नॉट दैट टू मच. एंड एज आई कंपेयर द मीडियन पी से, तो ये काफी कम है. I have compared, and I have compared with the industry P, that is also, it is actually more than, little bit more than the industry P, but still okay. हाँ, पी मैं कहूँगी इज एक्चुअली रीजनेबल. इट्स ओके, 20 इज ओके, रीजनेबल वैल्यू पे ये स्टॉक, बैंक स्टॉक अवेलेबल है. मार्केट कैप, यस, HDFC बैंक और ICICI के बाद है इसका मार्केट कैप, मीन्स नंबर 3 स्टॉक ऑफ द बैंकिंग सेक्टर. बट यस, इनसे काफ़ी छोटा है, मीन्स काफ़ी कम है इनका मार्केट कैप इन इन दोनों के कंपेयर में. So this is the fact. Now how much? This is 35, I think 3,54,646 around, 647 around इसका मार्केट कैप है. फिर डिविडेंड यील्ड पे जाऊं तो यस, डिविडेंड यील्ड आल्सो इज नॉट दैट गुड. इवन आई डोंट फील दैट दिस 0.08% डिविडेंड इज नॉट गुड. जबकि ICICI का अच्छा है और HDFC बैंक का तो बहुत ही अच्छा है. ROC इन बैंक में वी ऑलवेज सी द रिटर्न ऑन असेस्ट ROA, तो यहाँ पे ROC दिया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मच इन दिस ROC. RO इज ओके, 14 है, जो कि मतलब इन बैंक के कंपेयर में इट इज ऑल्सो इन अ रेंज. यस, ICICI और HDFC का ज़्यादा है, बट यस, दिस इज ऑल्सो इन अ सेम रेंज. जबकि और का नीचे का देखें तो एक्सिस बैंक वगैरह का उतना नहीं है. Now let's go to the EPS. EPS is also very good, मीन्स देखें तो HDFC बैंक के बराबर इसका EPS आता है. फ्लैश शेयर कोई भी नहीं है, नो फ्लैश शेयर. दिस इज एक्चुअली ओवरऑल पिक्चर ऑफ कोटक बैंक. You can compare, you can see the facts. This I am actually discussing in short, so please you can go in a detail, you can research in a detail. Now let's go to the technical chart. So see, I have come on this technical chart. Let's discuss. I have opened the weekly chart, so that because I have to discuss only and only long term. I'm not talking any trading purpose or any short term ideas. This is exactly for long term, and this bank is also for long term only. जैसे कि मैंने I just showed you the fundamental of this stock, that is very good. टॉप 3 बैंक में भी आता है. तो दिस इज नॉट कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक. तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म ओनली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओनली. अब इसलिए मैं आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी दिखाना चाहती हूँ. सो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन वीकली चार्ट. इस स्टॉक को why it was on good buying level, क्योंकि मैंने why I have selected this stock, because see this stock from here coming here, going down, coming down, here many time it is taking a resistance here, which is 1950 or around 1950 के आसपास ये आके एक रेजिस्टेंस लेता है. कई कई
महीनों से, कई बार से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर मैं कहूँ तो नवंबर 2020 से 20 से 2020 से ये यहाँ पे ही रेजिस्टेंस ले रहा है कि 3 साल से ज़्यादा हो गए, 3-4 साल हो रहे हैं। तो तब से ये यहीं पे रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे आता है वापस आ जाता है, यहाँ पे जाता है वापस आ जाता है, और यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेता है, विच इज दिस इज एक सपोर्ट। दैट इज वेरी गुड। मैं अगर देखूँ तो ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन इज good support for this stock, and exactly I am talking about this support only. मैं अभी चूंकि थोड़ा सा अगर इस जोन को ले लूं तो दिस जोन विच इज 1700, 1700 से लेके ये 1650 या 1700 को ही मैं मांगती हूँ, क्योंकि अब इतनी नीचे वो आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो, 1650 के आसपास। बट 1700 इज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस बैंकिंग स्टॉक। और अगर यहाँ नहीं भी आता है तो ये एक इसका 200 ईएमए भी है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं इसको देख रही हूँ 1700, यू कैन टेक 1700 तक, पर अभी तो आया नहीं है, अभी इट इज ट्रेडिंग एट 1780 अराउंड। आफ्टर रिजल्ट की बात करूँ, रिजल्ट के बाद ये गिरा। और अगर मैं डेली में जाऊँ ना तो डेली चार्ट में भी ये 1700 1800 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। बट मैं लॉन्ग टर्म की स्टोरी देख रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस सपोर्ट विच इज 1700। तो टेक 1700 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 1700 के बीच में 1800 इसका जो है एक यहाँ पे, यहाँ 1800 से लेके 1700 के बीच में इसका बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1700 से 1800 के बीच में वेरी गुड बाइंग जोन फॉर द कोटक महिंद्रा बैंक। बट ऊपर ये अगेन आएगा एंड अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा। ये स्टोरी इसकी 2020 से चल रही है। सो वी शुड होल्ड दिस स्टॉक इफ यू वांट, दैट इज योर डिसीजन, बट यू कैन होल्ड दिस स्टॉक एंड कैन वेट टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से लेके जो मैंने बनाया हुआ है, यू कैन सी दिस एरिया इज अ वेरी strong resistance zone for the Kotak Mahindra Bank. But breaking this resistance will take it to up not only here 2200, even more and more and more than that. So this was this idea of this stock, where can it reach, कहाँ पे support ले सकता है, फिर कहाँ तक ये जा सकता है। तो you should keep all this fundamental in your mind, that कि यहाँ पे एक resistance है 1950 से लेके 2050 तक के resistance को ये अगर break कर देता है तो it will go again up. So buying level for the Kotak Mahindra Bank can be 1700 to 1800, and after breaking 2050 it may even go more than 2200, even more than that, as we are talking about the long term story. So this was a short एनालिसिस ऑफ दिस कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक, जिसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, रिजल्ट्स भी डिस्कस कर दिए, करंट बाइंग लेवल, द वेरी गुड बाइंग जोन वेयर स्टॉक इज ट्रेडिंग, वो भी डिस्कस किया, एंड फंडामेंटल आई हैव शोन ऑल इन शॉर्ट पिक्चर में मैंने सब कुछ शो किया है। You have to go through this stock, you can study this stock, and then you can take your decision. If you have any query regarding any index, Nifty, or regarding any stock, you can comment me in the comment box, or you can DM me on Instagram and Twitter. The ID is on your screen. I am giving the link of another fundamental strong stock for long term. You can check in I button, or you can check in the link also. And yes, like and share this stock with the others also, and subscribe the channel for these kind of fundamentally strong stocks buying level for long term. Signing off.